Hello class 12 students. I'll continue with economics. The topic is demand and what are the factors on which demand depends or determinants of demand. In my previous video, part 1 video, I explained the meaning of demand and the factors or determinants of demand, factors which affect demand. We had covered price of the commodity, that is the first factor, and then the income of the consumer also, how it affects demand for various goods like normal goods, inferior goods, and inexpensive necessities. Thereafter, we also covered, consumers' taste and preferences, how consumers' taste and preferences affect demand. So this is part 2 of that video. We'll cover prices of related goods now. Prices of related goods, how they affect the demand of a product. So related goods are of two kinds. Related goods दो प्रकार के हैं, एक तो है substitute goods और एक है complementary goods. As you can see on the screen, I'll highlight with red ink pen where I'm explaining. So to start with, let's say complementary goods. Pay attention. So, to start with substitute goods. So substitute goods कौन से होते हैं जो एक की जगह दूसरा आप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉफी की जगह मैं चाय पी सकता हूँ, चाय की जगह कॉफी पी सकता हूँ. दे आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. सपोज द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन इज टी. हमें टी की डिमांड, टी हमारा मेन प्रोडक्ट है और टी की डिमांड पर हम असर देखना चाहते हैं कॉफी के प्राइस का. सो एज यू कैन सी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट आई हैव शोन हियर. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, दैट इज कॉफी, इफ इट राइजेस एज इंडिकेटेड बाय एन अपवर्ड पॉइंटिंग एरो. अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो व्हाट विल हैपन? लोगों को कॉफी महंगी लगेगी. मान लो चाय का प्राइस, टी का प्राइस वही है, तो व्हाट विल हैपन? पीपल विल स्विच ओवर फ्रॉम कॉफी टू टी, क्योंकि टी उनको रीजनेबल प्राइस पे मिलेगी. तो व्हाट विल हैपन? डिमांड फॉर प्रोडक्ट दैट इज टी विल इंक्रीज. दैट मीन्स there's a direct relationship between the price of substitute and the demand for a product. Okay, now जब हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे, how will it look? We'll get a positive slope graph, as you can see over here. Y-O-X axis is here, vertical axis, Y axis पे हमने price of coffee रखा बेटा. Okay, and on X axis I'm keeping demand for tea. So just pay attention. When the price of coffee is OP0, I'm encircling OP0, you can see on the screen. At that price of coffee, the demand for tea on X axis, that is horizontal axis, is OQ0. I'm encircling OQ0. Okay. अब देखो upward pointing arrow. When the price of coffee rises from OP0 to OP1, देखो upward pointing arrow है ये, P1 हो गया नया price. So what is happening to the demand for tea? Demand for tea has also increased to OQ1. तो नया पॉइंट हमें ये मिला, रेड. old point of intersection was this one. We join these 2 points and what do we get? We get a positive slope. Positive slope means there's a direct relationship between variable on the y-axis and variable on the x-axis. I hope this is clear. Then we move to complementary goods, children. Complementary goods हम एक साथ यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड के साथ बटर या जैम. ओके, पेट्रोल, कार के साथ पेट्रोल. So goods which are used jointly are complementary goods. अब यहाँ पे आप समझेंगे कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सपोज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो है वो पेट्रोल लिया मैंने, अपवर्ड पॉइंटिंग एरो मींस इंक्रीज. अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दैट इज पेट्रोल का? क्या होगा? उसकी डिमांड कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि लोग स्विच ओवर कर जाएंगे, उनको पेट्रोल का खर्चा, वो एनालाइज जो कार लेने वाले हैं वो बोलेंगे यार पेट्रोल का खर्चा ज्यादा होगा, तो लेट्स बाय डीजल कार और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं, ठीक है. So there's an inverse relationship between a complement and the product. अगर हम इस रिलेशनशिप को ग्राफ में दिखाते हैं, as you can see, we'll get a negative slope. Price of complement I have kept on the y-axis. Complement in my example is petrol, and demand for a main product that is petrol cars we have kept on the x-axis. अब देखो आप यहाँ पे, जब पेट्रोल का प्राइस है बेटा OP0, आई एम एनसर्कलिंग OP0 so that you can focus where I am explaining. जब पेट्रोल का प्राइस कम है, दैट इज OP0 है, तो उस समय लोग ज्यादा कार ले रहे हैं. सो डिमांड फॉर पेट्रोल कार्स इज एट OQ0 एज आई एम पॉइंटिंग आउट बाय एनसर्कलिंग OQ0, ठीक है.
Now what's happening, you can see upward pointing arrow when the price of petrol rises to OP1. ये बढ़ गया, देखो प्राइस, पेट्रोल महंगा हो गया। तो आप देखो इस ग्राफ पे व्हाट इज हैपनिंग टू द डिमांड फॉर कार्स, ये कम हो गई, ये एरो देखो अंदर की तरफ है, OQ1 डिमांड फॉर कार कम हो गई, OQ1 हो गई है, OQ0 थी पहले, अब श्रिंक करके OQ1 हो गई है। अगर हम स्केल से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये नया पॉइंट हमें ये मिला, पुराना पॉइंट ये है, इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें नेगेटिव स्लोप मिलता है। नेगेटिव स्लोप दर्शाता है कि दो वेरिएबल्स में, ये जो y एक्सिस पे और x एक्सिस पे जो दो वेरिएबल है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इनवर्स, उल्टा रिलेशन, ठीक है। वी प्रोसीड फर्दर। फिफ्थ फैक्टर जो है जिस पे डिमांड निर्भर करती है, दैट इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर की, उपभोक्ता की आशाएं भविष्य को लेके, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में या शॉर्टेज के बारे में। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, if consumers expect a rise in the price of a product in future, they would demand more quantity of it today to avoid buying it at a higher price in future. ये बहुत आपने देखा होगा कि सपोज इट्स कम्स इन न्यूज की आज सपोज 12 बजे से, रात के 12 बजने के बाद या कल से पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आज आप शाम को क्या अभी देखोगे आप पेट्रोल पंप पे लॉन्ग क्यूज, लाइनें लगी हुई हैं, लोग पेट्रोल अभी ज्यादा क्वांटिटी में फुल करवाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोल तो यूज करना ही है या डीजल यूज करना है, जिसका भी दाम बढ़ रहा है, तो वो अभी दे वुड लाइक टू बाय एट, क्योंकि आज के दिन प्राइस कम है तो दे वुड लाइक टू बाय इन लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि कॉमन सेंस है, कल वही पेट्रोल महंगा पड़ेगा, कल फुल करवाएंगे तो, ठीक है, तो जितना सस्ते में मिल रहा है ले लेंगे वो। अनदर एग्जांपल इज सपोज, यहाँ दे रहा हूँ, आई इरेज दिस, सपोज टोमेटो का प्राइस था 30 रुपीज पर केजी चल रहा था, आई यू अंडरस्टैंडिंग, लास्ट वीक 30 रुपीज पर केजी था। आज मार्केट में मैंने पूछा कितने का है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आज है 50 रुपीज पर केजी, ठीक है, टमाटर। और मैंने बोला कि ये यार 30 रुपए किलो था, 50 रुपए किलो आप दे रहे हो, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा आप किसी भी ठेले पे पूछ लो, इतना ही रेट चल रहा है और अभी शॉर्टेज है कि ये तो दाम और बढ़ेगा, अभी 2-1 दिन में भाई साहब ये दाम हो जाएगा 120 हो जाएगा सपोज, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में कितना हो जाएगा, 120, 100 को पार कर जाएगा प्राइस, ये आई एम एनसर्कलिंग इट, दैट इज व्हाट द दैट seller is telling me. So although the price has increased from 30 to 50, but what will the consumer do? They will buy at 50 more quantity of tomato and store. Are you understanding it? प्राइस ऑलरेडी बढ़ा है, प्राइस बढ़ने पर नॉर्मली कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, कंज्यूमर कम खरीदता है, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, 100 से ऊपर चला जाएगा, तो अभी कंज्यूमर्स क्या करेंगे, हाउ विल दे बिहेव, वो अभी 50 पर ही, एट 50 पर केजी दे विल बाय एंड स्टोर मोर इन द फ्रिज। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट शॉर्टेज भी होती है बेटा, इफ कंज्यूमर्स आर एक्सपेक्टिंग दैट अ प्रोडक्ट विल बिकम in short supply, there will be a shortage of a product in future, in near future, what will they do? They will become panicky, घबरा के वो ज्यादा अभी खरीद लेंगे और स्टोर कर लेंगे, तो ये सब चीजें असर डालती हैं डिमांड पर। लेट्स कम टू द सिक्स्थ फैक्टर विच इज कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। देखो अमीर लोग तो कार या मोबाइल जो भी चाहिए वो तो पूरा पैसा दे करके एक साथ ले लेते हैं, मिडिल क्लास लोग, नॉर्मल लोग जो है मिडिल क्लास लोग, ये गाड़ी हो गई, यू नो घर हो गया, तो उसके लिए वो लोन लेते हैं। सो as simple as that, if the banking facilities about, bank is providing loans and at reasonable interest rate, what will happen, even the middle class people will come forward and they will buy consumer durable goods, like you can say cars, two wheelers, हाउसिंग लोन ज्यादा लेंगे मिडिल क्लास लोग, घर की डिमांड ज्यादा होगी, गाड़ियों की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर बैंक्स लोन को महंगा कर देंगे, मींस इंटरेस्ट, ब्याज का जो रेट होता है, ब्याज का जो दर होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बढ़ा देंगे, यानी कि लोन महंगा हो गया, उस केस में क्या हो गया, दैट मीन्स क्रेडिट फैसिलिटीज आर नॉट इजीली अवेलेबल, क्रेडिट फैसिलिटीज आर कॉस्टली। तो उस केस में डिमांड हम देखेंगे कि डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार्स एंड टू व्हीलर्स या हाउसिंग लोन कम हो जाएगी, क्योंकि उस दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ओनली अ फ्यू रिच पीपल विल बी बाइंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स।
आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं क्या कह रहा हूँ इसमें कि अगर क्रेडिट फैसिलिटीज देश में ज्यादा होंगी तो हम देखेंगे कि वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो हैं, जो महंगे गुड्स होते हैं, वो मिडिल क्लास लोग भी खरीदेंगे और उनकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर बैंकिंग सिस्टम हमारा क्रेडिट फैसिलिटीज कम देगा तो फिर ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोग ये चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लोन भी नहीं मिल रहा है और वो उनके पास कैश है नहीं पूरा पेमेंट करने के लिए। उस केस में क्रेडिट फैसिलिटीज जब कम होंगी तो केवल कुछ अमीर लोग ही ये चीजें खरीदेंगे, तो यानी कि डिमांड इन चीजों की कम होगी। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट पे आते हैं, दैट इज द 7th पॉइंट चिल्ड्रन, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट एक्चुअली होता है कॉपी करना किसी का लाइफस्टाइल। ओके, एक मिडिल क्लास पर्सन है और आस पड़ोस में या उसके दोस्त लोग थोड़े रिच क्लास को बिलोंग करते हैं, तो उनकी वॉच देखता है, कॉस्टली वॉच, कॉस्टली शूज, तो उसका भी मन करता है कि मैं इस तरह के कॉस्टली वॉच, कॉस्टली ब्रांड्स में भी पहनूं, कॉस्टली गाड़ी में, एक्सपेंसिव कार्स में, या मोबाइल मेरे पास भी हो। तो जिद करेंगे अपने पापा मम्मी से कि हमें भी ये दिलाओ। तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू कॉपी द कंजम्पशन पैटर्न। कंजम्पशन पैटर्न मीन्स जो और लोग, पड़ोसी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो जो रिच हैं, या वेस्टर्न कंट्रीज की मूवीज या प्रोग्राम देखकर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि ये ऐसे, ये सब ये कंज्यूम करते हैं, तो आप में भी एक मन करता है कि आप भी वो उसको कॉपी करें। चाहे तो उसमें होता क्या है कि one goes beyond the budget. Demand for luxury goods like costly watches, mobiles has increased because of demonstration effect. तो मे बी इस केस में इतना स्ट्रांग होता है कई बार कि मे बी अ पर्सन इज अनेबल टू अफोर्ड, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप कॉपी करने के चक्कर में आप इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो कि आप किसी तरह से पैसा जुटा रहे हो वो चीज खरीदने के लिए। ठीक है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे आते हैं। When the population of a country will increase, that means number of consumers will increase. So when the number of consumers will increase, obviously the demand for food, clothes and shelter will increase. जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी किसी देश की, तो ज्यादा कंज्यूमर हो जाएंगे, उपभोक्ता भी बढ़ेंगे, ज्यादा लोगों को ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो डिमांड उस देश में बढ़ेगी। केवल साइज ही नहीं है, इसमें कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में आप ऐसे समझ लो कि अगर किसी स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल केरला में, फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर देन द मेल्स, तो वहां पे ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स विच फीमेल्स यूज उसकी डिमांड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स विच मेल्स आर यूजिंग। ओके, टेक सेकेंड एग्जांपल। सपोज एक एरिया है जहां पर कैसे कॉल सेंटर्स हैं, जैसे गुड़गांव जिसको कहते थे, गुरुग्राम, वहां पर कॉल सेंटर्स हैं, या यंगस्टर्स काम करते हैं, तो ऑब्वियसली यंगस्टर्स वांट टू ईट आउट, so there will be lot of restaurants of fast food, and there will be many showrooms selling branded clothes, jeans and all that, the kind of fashionable clothes which youngsters wear. Okay, imagine करो कि एक एरिया है जहाँ बूढ़े लोग ज्यादा हैं, सपोज इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो बूढ़े लोग अगर एक एरिया में ज्यादा हैं, तो वहाँ किस चीज की ज्यादा दुकानें होंगी, डिमांड किसकी होगी, दवाइयों की, वॉकिंग स्टिक की, वार्म क्लोथ्स की, ओके, व्हील चेयर की में भी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। समझ आ रहा है बेटा? एंड देन वी कैन ऑल्सो थिंक इट दैट वे कि एक एरिया जहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं, जब बच्चे जाते हैं तो आसपास स्टेशनरी शॉप्स, टॉय शॉप ज्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे किड्स का क्राउड ज्यादा है, यंगस्टर्स का क्राउड ज्यादा है। देन वी कम टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक देश में किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। अगर एक देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है बेटा, तो एक तरफ हम पाएंगे कि वी हैव वेरी रिच पीपल, ऑन द अदर हैंड वी हैव वेरी पुअर पीपल हु आर लिविंग इन स्लम्स। सो एक तरफ तो वी हैव पीपल, वेरी रिच पीपल हु आर विजिटिंग 5 स्टार होटल्स, ऑन द अदर हैंड पीपल लिविंग इन स्लम्स। तो ऐसी जगह पे लग्जरी गुड्स की डिमांड अधिक होगी बाय द रिच। अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी कि गरीब और अमीर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे देश में मिडिल क्लास लोग ज्यादा होंगे और डिमांड फॉर नेसेसिटीज, इसेंशियल कमोडिटीज ज्यादा होगी। लास्ट पॉइंट है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सेकंड लास्ट फैक्टर है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि भाई देहरादून समर्स में डिमांड फॉर फैंस, कूलर्स, एसीज बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस, एंड हीटर्स, ब्लोअर्स और वुलन क्लोथ्स की डिमांड विंटर्स में बढ़ जाती है बेटा। ओके, एंड देन द लास्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी बढ़ा देगी तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, कंज्यूमर को ज्यादा देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली डिमांड उसकी कम हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ओके।